हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संकेत कुमार सिन्हा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था अबाउट 50% ऑफ आवर चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला रिमेनिंग 50%, जिसमें इंक्लूडेड है आपका सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, टैक्स का रेट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग विथ न्यू the concept or topic, I would like to quickly revise the 15 steps of computation of total income, which is very important for understanding the entire income tax. So step for computation of income tax and total income was divided into 15 steps. Now step number 1 was the determination of residential status. As I mentioned in my last video that residential status is very important in order to compute the tax. So step 1 was the determination of residential status. Now step number 2 was the classification of income under various heads, and step number 3 was the computation of income under various heads. Like as I mentioned in my last video, we have 5 heads of income. So first step in computation of total income and tax liability is determination of residential status. Step 1. Step 2, determination of income under each head, and step number 3 is computation of income under each head. Now step number 4 is clubbing. Step number 5 is set off. Step number 6 is computation of gross total income. Step number 7 is the deduction from gross total income. Step number 8 is the computation of total income. Step number 9 is application of rates on the total income. Step number 10, surcharge or rebate under section 87 if any applicable, and health and education cess. And step number 12, alternate minimum tax. Step number 13 is examination whether to pay tax under new regime or the default new regime or under the old regime. And step number 14 is the determination of advance tax paid or TDS deducted or TCS collected. And step number 15 is tax payable or tax refundable as the case may be. So this was the 15 steps in which whole income tax act computation and determination of total income is divided. Now let's understand some of the important definitions. And one of the important definition from which I am going to start my today's lecture is the definition of income. जैसा हम बोलते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो इनकम का भी इनकम को कंप्लीट डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। तो इनकम का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो नाउ लेट स्टार्ट व्हाट द डेफिनेशन स्टेट्स. Now the definition of income is, it is section 2 clause 24 gives statutory definition of income. The following item of receipts are specifically included in the said definitions. said definition मतलब इनकम के डेफिनेशन में ये कुछ रिसीट्स हैं जिसको हम इनकम बोलते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट और गेंस. अगर कोई प्रॉफिट और गेंस है तो वो मेरा क्या है, इनकम है, उस पर मेरा टैक्स लगेगा. फिर डिविडेंड, अगर हमको डिविडेंड अर्न हुआ है तो वो मेरा इनकम है, तो डिविडेंड पे हमको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा. थर्ड कंपोनेंट, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस. तो अगर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन कोई भी ट्रस्ट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या कोई भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट रिसीव करता है तो वो भी मेरा क्या है, इनकम है उस ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो वो भी एक इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा. फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3. तो अगर कुछ परक्विजिट्स हमको मिलता है जिसका वैल्यू ऑफ परक्विजिट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, सैलरीड पर्सन को क्या मिलता है, परक्विजिट्स. अगर कोई परक्विजिट्स मिलता है तो उसका वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टैक्सेबल एंड इट इज़ द काइंड ऑफ इनकम. सो उस पर भी मेरा टैक्स लगेगा. तो अभी तक 4 कंपोनेंट बात की हम लोग. अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ कंपोनेंट क्या बात करते हैं, एनी स्पेशल अलावेंस और बेनिफिट अदर देन द परक्यूजिट. अगर कुछ परक्यूजिट्स हमको मिलता है जो कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देता है, तो उस परक्यूजिट को हम अपना पॉइंट नंबर 4 में कवर किए. अगर उसके अलावा कोई और भी स्पेशल अलावेंस या बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वो भी मेरा एक इनकम है, तो उस पर भी मेरा टैक्स लगेगा. ठीक है.
फिर एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द असेसी टू मीट द हिज पर्सनल एक्सपेंस। अगर कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसका पर्सनल एक्सपेंस को मीट करने के लिए, दैट अलाउंस इज ऑल्सो द इनकम ऑफ द असेसी। सो ऑन दैट इनकम ऑल्सो असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। दैट्स वाई इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। तो अभी मैंने कुछ 6 कंपोनेंट्स बताए कि ये मेरे इनकम माने जाएंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बात करते हैं सातवां कंपोनेंट। सातवां कंपोनेंट क्या बात करता है? वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स और बेनिफिट whether convertible into money or obtained from a company either by a director or by a person who has substantial interest in the company or by relative of the director। अगर हम बेनिफिट या फिर परक्यूजिट या फिर परक्यूजिट रिसीव करते हैं, बेनिफिट रिसीव करते हैं, जिसको लेटर ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे केस को भी हम लोग बोलते हैं वो मेरा इनकम होता है। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी इनकम या कोई भी मेरा बेनिफिट या परक्यूजिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है, तो उसको हम इनकम बोलते हैं। जैसे दो तीन पॉइंट्स ऊपर में जस्ट कवर हुआ। अब इस पॉइंट पर स्पेसिफिकली बात करता है कि अगर कंपनी का डायरेक्टर को अगर कोई भी बेनिफिट या परक्यूजिट्स मिलता है तो वो भी उस डायरेक्टर के लिए क्या है, इनकम है, तो उस पर भी मेरा इनकम टैक्स लगेगा क्योंकि वो इनकम है एज पर डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्सिक्यूटिव वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट। इसके बाद फिर बोल दिया कि अगर डायरेक्टर, उसके पहले जो 7th पॉइंट अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए उसमें मेरा डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि डायरेक्टर अगर कुछ रिसीव करता है समथिंग बेनिफिट या परक्यूजिट्स, अगर उसके अलावा कोई भी आदमी बेनिफिट, कोई भी एम्प्लॉय रिसीव करता है बेनिफिट या परक्यूजिट्स फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द that is also the income for the employee, so that will also be taxable। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9 उसी डेफिनेशन में कंटिन्यूएशन में क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से अगर कुछ प्रॉफिट है गेन होता है तो वो भी मेरा क्या है, इनकम है, तो वो इनकम है तो उस पर मेरा टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं डिम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 और 59। कुछ इनकम को हम लोग डिम्ड प्रॉफिट मानते, कुछ मेरा प्रॉफिट जो होता है ना उसको हम डिम्ड प्रॉफिट मानते हैं एज पर इनकम टैक्स लॉ, तो उसको भी जो भी मेरा डिम्ड प्रॉफिट एज पर सेक्शन 41 और 59 है वो मेरा क्या है, इनकम है, तो उस पर मेरा टैक्स लगेगा। ओके, अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स और बेनिफिट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 सब सेक्शन 4। अब क्या बात करते हैं, कुछ बेनिफिट और परक्यूजिट जो है हमको सेक्शन 28 और 4 के अंडर में कवर होता है, तो वो भी मेरा क्या है, इनकम है। ये सारे जो भी सेक्शन हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लेटर ऑन अपने जब एक एक हेड पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में आएगा, तो दैट्स टाइम आई विल एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल मैनर सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो पर्पस बिहाइंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर इज ओनली टू गिव द रफ आइडिया अबाउट व्हाट द होल सिलेबस इज अबाउट एंड सम टर्म्स को थोड़ा दिमाग में हमारे बैठ जाए, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। ओके, तो अभी जैसे हम जस्ट जो इनकम का डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें हमें सिर्फ आइडिया लग रहा है कि किसको किसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ सेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे अब डरने का नहीं है, आगे जब जैसे जैसे सेक्शंस आते जाएंगे डिटेल में तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ जस्ट अभी कंप्लीट किए कि डिम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 और 59 उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स और बेनिफिट जो डिफाइंड एज पर सेक्शन 28 सब सेक्शन 4 आता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनकम बोलते हैं। अब कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45 उसको भी इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फॉर गैम्बलिंग, बेटलिंग और एनी अदर व्हाट्सओवर। ओके, अगर कोई भी हमको अगर लॉटरी, जैसे हम लोग कभी कभी लॉटरी खेलते हैं तो लॉटरी में जो जीत गया पैसा तो भी क्या मेरा इनकम है, उस पर भी मेरा टैक्स लगेगा। ओके, तो जैसे नहीं देखते कि केबीसी में गए वहाँ पे 10 करोड़ मिला, 1 करोड़ मिला, तो वो सारा मेरा जो इनकम होता है ना उस पर भी टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ओके, अब आगे बात करते हैं एनी सम रिसीव बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय एज अ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ESIC और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सच एम्प्लॉय। अगर इस तरीके का अगर कुछ भी असेसी रिसीव करता है अपने एम्प्लॉय, कोई भी चीज़, ये असेसी यहाँ पे स्पेसिफिकली एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय मेरा असेसी है वो अगर ये सारा कुछ अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है तो वो भी मेरे लिए क्या है, काइंड ऑफ इनकम है, क्योंकि वो मेरे को दे रहा है इनडायरेक्टली ही इज पेइंग, एम्प्लॉयर इज पेइंग टू हिज एम्प्लॉय, सो फॉर एम्प्लॉय इट इज इनकम, सो इफ इट इज इनकम सो टैक्स विल बी लेविड ऑन दैट
ओके। नाउ एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, इससे हमेशा एग्जाम में एक एडजस्टमेंट हमें पूछता है। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, कंपनीज क्या करते हैं ना, अपने कुछ की मेंबर्स लोग के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी कंबाइन करके खरीद लेते हैं। तो उसका प्रीमियम देना होता है हमारे सैलरी से, कुछ पोर्शन से डिडक्ट होकर के उसका प्रीमियम जाता है। तो एक एट ए टाइम वो मैच्योरिटी होता है उसका वैल्यू हम सारे जो भी उसमें कवर्ड थे लोग उनको देते हैं। तो एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग सम एलोकेटेड बाय वे बोनस और सच पॉलिसी विल बी कॉन्स्टिट्यूट इनकम। अगर उस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में उसके अंडर से हमको कुछ भी पैसा मिलता है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो उसको हमको क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू और ट्रीटमेंट एज ए कैपिटल असेट अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 5A। तो इसमें हम बात करते हैं कि फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू कैपिटल असेट, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। आगे, कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर्स एज एक्सीड्स ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें क्या बात करते हैं, ये मेरा सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज 7B। ये क्या बात करता है कि कोई भी कंसिडरेशन रिसीव फॉर इशू ऑफ शेयर एक्सीड्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। लेट सपोज कि मेरा एक पास एक शेयर्स है, ठीक है, वो शेयर को हम बेचे, उसके बदले में जो पैसा हमको मिला ना, अगर वो जो कंसिडरेशन रिसीव है ना वो मेरा ग्रेटर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, देन इन दैट केस जो हमको कंसिडरेशन पे जो मिलता है वो मेरा क्या होगा, इनकम होगा मेरा। ठीक है, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एडवांस एंड लेटर फॉरफिटेड, ये सब सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में, बट हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास कुछ एडवांस सम हम रिसीव किए थे एडवांस, ठीक है, कुछ अपना कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बट लेटर ऑन वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो पैसा को हम फॉरफिट कर लिए। तो जो पैसा फॉरफिट किया ना वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ क्या है, इनकम है। ठीक है, सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी मेरा क्या है, काइंड ऑफ इनकम ही बोलते हैं इसको। अब बोलोगे कि ये सारे कुछ इनकम है, कैसे इतने कुछ को रिटेन कर पाएंगे, डोंट वरी, लेटर ऑन जैसे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ वापस से रिपीट होंगी। जस्ट अभी इस लेक्चर के माध्यम से हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे क्या क्या अपने कमिंग सिलेबस में पढ़ना है। ओके, नाउ कंपेंसेशन रिसीव बाय वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि हमको टर्मिनेट कर देता है कंपनी, तो उस केस में हमको कंपनसेशन मिलता है, तो वो जो कंपनसेशन मिलता है दैट कंपनसेशन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ इनकम। ओके, नाउ सम इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट फॉर यूलिप अंडर सेक्शन 56 टू सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लाउज 13। तो ये अगर मेरा एक यूलिप कॉन्सेप्ट है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हम कभी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें क्या होता है। पहले क्या हो रहा था कि लोग डिडक्शन लेने के लिए ना बहुत सारे अमाउंट का अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेते जा रहे थे, प्रीमियम देते जा रहे थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोला कि आप एक सर्टेन लिमिट तक का ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपका एग्रीगेट जो पेबल होगा इंश्योरेंस प्रीमियम वो 2.5 लाख तक का होगा, इन डैट तब तक का ही आपको डिडक्शन मिलेगा, उससे ऊपर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी और ए ग्रांट और ए कैश इंसेंटिव ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हमको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलता है। ड्यूटी ड्रॉबैक काइंड ऑफ बेनिफिट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में हमको ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, वेवर आता है, कंसेशन मिलता है, रिम्बर्समेंट होता है, जो भी ड्यूटी पे करते हैं उसका बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देता है एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। तो और फिर समटाइम्स क्या होता है कि हमको वेव कर देता है ड्यूटी। तो ये सब काइंड ऑफ बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलते हैं। तो जो बेनिफिट हमको मिलता है ना वो भी मेरे लिए क्या है, एक इनकम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे आगे दिए हुए बुक्स में जो रिलेटेड टू ये बताते हैं कि हम लोग का क्या चीज़ टैक्सेबल होता है, क्या टैक्सेबल नहीं होता है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स होते हैं। रिसीट्स मतलब जो हम रिसीव करते हैं, तो 2 काइंड होते हैं, कैपिटल रिसीट हो सकते हैं और एक मेरा
कैपिटल रिसीट हो सकते हैं और एक मेरा रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। तो इन जनरल जब हम बात करें तो इनकम टैक्स में ना कैपिटल रिसीट को टैक्सेबल नहीं किया जाता है, बट सम ऑफ द केसेस जहाँ पे कैपिटल रिसीट स्पेसिफिकली उसके लिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड बना हुआ है, वहाँ पे कैपिटल रिसीट को भी हम टैक्सेबल करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मतलब उसका डिफरेंस हमको थोड़ा समझना जरूरी है, तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। रेगुलर रिसीट्स वर्सेस कैजुअल रिसीट्स। Income in general means a periodic monetary return which accrue or expected to accrue regularly from a definite source. However, Income Tax Act includes certain casual receipts as income, example lottery winning. कभी कभी क्या होता है कि इनकम जो है हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, रेगुलर रिसीट्स। अगर हमको कुछ रेगुलर मिल रहा है, रिसीट्स हो रहा है, तो दैट रेगुलर रिसीट इज इन जनरल टर्म हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम। बट कभी कभी क्या होता है कि कैजुअल रिसीट्स, कभी कभार अचानक से हो गया हमको रिसीट, उसको भी हम इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लॉटरी विनिंग, लॉटरी हम ऐसा थोड़ी ना हम जीतते रहते हैं, लॉटरी हमको कभी हो गया तो वो लॉटरी जो होगा मेरा, वो क्या होगा, मेरा एक कैजुअल रिसीट होगा, वो भी, उसको भी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लगाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। इन जनरल जब हम बात करें, रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूडेड इन इनकम, जो भी मेरा रेवेन्यू रिसीट्स होता है उसको इनकम बोलते हैं। हाउएवर सर्टेन कैपिटल रिसीट्स आल्सो इंक्लूडेड इन इनकम, तो जैसा हम जस्ट एक्सप्लेन किए कि कैपिटल गेन्स। आगे बात करते हैं नेट रिसीट वर्सेस ग्रॉस रिसीट्स। इनकम मीन्स नेट रिसीट एंड नॉट ग्रॉस रिसीट। Net receipt derived after deducting eligible expenditure. Gross receipt used in determination of certain assessees income, example presumptive taxation. देखो अभी बात करते हैं कि हम लोग का जो इनकम जो टैक्स लगता है ना, वो नेट रिसीट पे लगता है, ना कि ग्रॉस रिसीट्स पे। तो ग्रॉस रिसीट्स का क्या यूज़ है, ग्रॉस रिसीट्स का यूज़ है कुछ एसएससीज का टैक्स डिटरमाइन करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे ग्रॉस रिसीट्स यूज़ करते हैं। तो ग्रॉस ये किस केस में आता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो ये आगे जाकर हम एक्सप्लेन, आगे जाकर चैप्टर्स में मिलेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है, ठीक है, वहाँ पे हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। अब रिसीट बेसिस और ड्यू बेसिस, हम लोग का इनकम जो है ना वो इधर रिसीट बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे टैक्स लगता है। अगर एक इनकम मेरा रिसीट बेसिस पे टैक्स लग गया है तो उसको हम ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर वो ड्यू बेसिस पे लग गया तो रिसीट बेसिस पे नहीं लगाएंगे। तो ये वाइस वर्सा चलता है, इट डिपेंड्स अपॉन होल्डिंग ऑन द type of practice the entity or the business is following. Okay, now move to the another topic, that is application of income or diversion of income. Application of income क्या होता है, application of income means to discharge an obligation after such income reaches assessees. जैसे हमने कुछ इनकम कमाए तो उसका एप्लीकेशन कब मानेंगे हम, जब उसको हम यूज़ करते हैं अपना कुछ ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसको हम मानते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पर्सन हुम अप्लाइज इट। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है उस पर, जैसे हमको कुछ मेरे पास इनकम हुआ, ठीक है, वो इनकम मेरे पास आया कि उसको, वो मेरे पास कुछ रिसीट्स हुआ, लेट सपोज कुछ रिसीट्स हुआ जिसको यूज़ करके हम अपना ऑब्लिगेशन को मीट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेरा रिसीट अपना ऑब्लिगेशन को मीट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम को हम टैक्सेबल कर सकते हैं, बट एक और कॉन्सेप्ट होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम को हम लोग टैक्सेबल नहीं कर सकते। ये डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है, इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेज असेसी। जैसे मेरा इनकम था बट वो हमको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल गया वो इनकम, ठीक है। तो हम मेरे को जो मेरे पास आना था इनकम, वो मेरे पास ना आकर किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो वो उसको मेरे पास आना था बट वो मेरे पास नहीं आया, वो किसी और के पास चला गया। तो अगर हमको इनकम हुआ नहीं तो हम टैक्स कहाँ से देंगे, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम, ठीक है। आगे बात करते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इनकम कैन इधर बी रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अभी पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाहे इनकम जो होगा मेरा, वो मेरा रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है, कैपिटल इनकम भी हो सकता है। बट रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट जो है उसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलवेज कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, अगर वो मेरे एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होगा तो ही उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रेवेन्यू receipts are always taxable, not the capital receipt. But there are certain exceptions where the capital receipts are also taxable as per Income Tax Act 1961. Okay. Now, Act levies tax on income, not on capital receipt. Capital receipts cannot be taxed unless fall within the definition of income. Okay. आगे बात करते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी सिंगल टेस्ट बाई विच वी कैन से पार्टिकुलर रिसीट इज रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट।
ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये रिसीट मेरा कैपिटल ही रिसीट है और ये रिसीट मेरा रेवेन्यू रिसीट है। बट कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो रिसीट हमको हो रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है और ये रिसीट मेरा कैपिटल रिसीट है। ओके, तो अब बात करते हैं क्या क्राइटेरिया, फिक्स्ड कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। दो टाइप का कैपिटल होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, एक होते हैं मेरा फिक्स्ड कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। जो मेरा फिक्स्ड कैपिटल होता है उसके लिए क्या नोट्स में अपना मेंशन किए हैं, ये रिसीट रेफरेबल टू फिक्स्ड कैपिटल इक्वल्स टू फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल रिसीट। रिसीट रेफरेबल टू सर्कुलेटिंग कैपिटल इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसीट। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल which are being used to yield income or loss in process। अभी इसको हम सिंपल भाषा में बोले, फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो मेरा फिक्स्ड है, उसको हम बार बार बिजनेस से विड्रॉ नहीं कर सकते। बट जो मेरा रेवेन्यू नेचर कैपिटल होता है, जैसे उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, उसको यूज़ करके हम बिजनेस चलाते हैं जिससे हम इनकम अर्न करते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट और ट्रेडिंग असेट इक्वल्स टू प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट और ट्रेडिंग असेट। तो जो मेरा इनकम जो होता है कैपिटल असेट या ट्रेडिंग असेट को ट्रांसफर करने पे जो इनकम होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। अगर मेरा कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने से जो इनकम होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, जिसको हम जो चार्जेबल होता है अंडर सेक्शन 45। अगर कुछ ट्रेडिंग असेट्स है, जैसे किसी का बिजनेस है, तो बिजनेस में अपना इन्वेंट्री को जो बेचता है ना उसको बोलते हैं ट्रेडिंग असेट्स। तो ट्रेडिंग असेट्स को बेचने से जो हमको इनकम होता है उसको वो मेरा कहाँ चार्जेबल होता है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28। तो इनकम हमको दो तरीके से होता है। इधर बाई हो सकता है इधर बाई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट और ट्रेडिंग असेट। तो कैपिटल असेट का ट्रांसफर से जो हमको इनकम आता है ना उसको हम लोग चार्ज करते हैं कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन 45। और वही अगर हमको अपना ट्रेडिंग असेट को ट्रांसफ़र करने से जो इनकम होता है ना उसको हम चार्ज करते हैं पीजीपी हेड में। और ये सेक्शन कौन सा सेक्शन इसको कवर करता है, सेक्शन 28। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के लिए कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जिसको थोड़ा हम एक ऊपर से समझ सकते हैं कि ये टेस्ट को अप्लाई करेंगे इससे हम समझ सकते हैं कि मेरा रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विल ऑलवेज बी रेवेन्यू रिसीट। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विल ऑलवेज बी रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, नाउ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। Profit arising from sale of shares and securities can be either revenue receipts or capital receipts। ये किस पे डिपेंड्स करेगा, मोटिव, इंटेंशन और पर्पस। मोटिव, इंटेंशन एंड पर्पस, MIP, मोटिवेशन, इंटेंशन एंड पर्पस पे डिपेंड करेगा ये कि ये मेरा रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इंडिविजुअल है, ठीक है, हम मार्केट में पैसा लगाते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम वहाँ पैसा लगाते हैं और उससे हमको कुछ रिटर्न चाहिए रहता है। ठीक है, एक मेरा मोटिव है। एक दूसरा ब्रोकर है, वो सिक्योरिटीज परचेज करता है फॉर पर्पस ऑफ सेल, उसका काम ही है कि वो बेचना खरीदना, उसका बिजनेस है। तो उसके लिए जो इनकम होगा ना वो मेरा क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट। बट मेरे लिए जो इनकम होगा ना मेरा इन्वेस्टमेंट से जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, कैपिटल रिसीट। ओके, तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मोटिव, इंटेंशन एंड पर्पस। मेरा मोटिव क्या है, रिटर्न कमाना, बट ब्रोकर का काम क्या है, उसमें से अपना कमीशन कमाना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सिंगल ट्रांजैक्शन, एक और क्वेश्चन आता है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन क्या मेरा बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। द आंसर इज यस। लेट्स सपोज कि एक बिल्डर है, एक फ्लैट बनाता है, उसको बेच देता है, तो एक बनाया एक बेचा, तो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ उसका। तो उसका एक ट्रांजैक्शन ऐसे हम बोल रहे हैं कि बना लिया, ठीक है, और उसको बेचा, तो बेचने पे एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, उससे उसको प्रॉफिट हुआ, तो क्या उसका वो इनकम है, क्या वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। द आंसर इज यस। देयर इज नो नेसेसिटी टू हैव अ रेगुलर, देयर इज नो नेसेसिटी कि वो मेरा कंटिन्यूअस बेसिस पे हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखे हैं, एन असेट इज परचेज विद इंटेंशन टू रीसेल it. The question whether the profit on sale of its capital or revenue in nature depends upon, ठीक है, conduct of the SSC, nature and quantity of article purchase, nature of operation involved, whether the venture is on capital or revenue account and other related circumstances। ये कुछ conditions हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वो मेरा
वो जो हम जो असेट परचेस किए हैं इंटेंशन टू रीसेल, क्या वो मेरा रेवेन्यू डिपेंड होता है या फिर कैपिटल, तो ये डिपेंड्स करता है कुछ कंडीशन पे। ठीक है, वो ऐसा क्या करता है उससे, नेचर एंड क्वांटिटी कितना परचेस कर रहा है वो, नेचर ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व। ठीक है, अब लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो रिसीट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस डायरेक्टली एंड इंटीमेटली linked with the procurement of a capital asset which led to delay in coming into existence of profit making apparatus is always called is always be capital receipt। तो liquidated damage जो हमको मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली और इंटीमेटली जो लिंक्ड है मेरा प्रोक्योरमेंट ऑफ कुछ कैपिटल असेट्स से, ठीक है, विच लीड टू डिले इन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग apparatus, इसको हम बोलेंगे हमेशा कैपिटल रिसीट। मतलब कि जैसे कि हमको ये हो गया, एक हम कॉन्ट्रैक्ट दिए एक एक्स कंपनी को कि मेरा ये फैक्ट्री यहाँ पे बना करके देने का, एक मतलब फैक्ट्री का प्लांट सेटअप करके ये सब कुछ का टास्क दिए, बट वो कर नहीं पाया, तो बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी डैमेज। इससे क्या हुआ कि मेरा जो फैक्ट्री बनने वाला था जिससे हमको प्रॉफिट मिलने वाला था फ्यूचर में, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया, तो उसके कारण हम उससे क्या लिए, लिक्विडेटेड डैमेज लिए। ठीक है, तो रिसीट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्टली एंड इंटीमेटली लिंक टू प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल असेट लीड्स टू द विल ऑलवेज बी कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये हमको एक बार ही मिलने वाला है उससे, इसलिए हम उसको बोल दी कैपिटल रिसीट। अब बात करते हैं कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, जैसे एजेंसी बिजनेस मेरा एक इंडिविजुअल, मेरा सिर्फ एजेंसी बिजनेस ही है, ठीक है, तो वो मेरा एजेंसी बिजनेस टर्मिनेट हुआ तो उसके कारण हमको कुछ कंपनसेशन मिला, तो वो जो कंपनसेशन मिला ना हमको, ठीक है, तो बट रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 टू सबसेक्शन 3 क्लाउज सी। ये जो कंपनसेशन हमको मिला ना टर्मिनेशन ड्यू टू एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वो मेरा वन टाइम इवेंट है, वो कैपिटल नेचर का है, लेकिन इवन दो इसको हम टैक्सेबल करेंगे अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 एंड क्लाउज सी, मतलब कि पीजीपी में तब भी वो टैक्सेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं कंपनसेशन। जो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा बिजनेस है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करते हैं बहुत सारे वेंडरों के साथ, बट बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो उसके कारण हमको क्या होता है, कंपनसेशन मिलता है, उससे कंपनसेशन लेते हैं उससे वेंडर से। तो वो जो कंपनसेशन लेते हैं ना, वो क्या है, मेरा बिजनेस नेचर की, बिजनेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस और कनेक्टेड विथ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसके कारण वो मेरा किस नेचर का है, बिजनेस नेचर का है, तो वो मेरा कहाँ पे टैक्सेबल होगा, पीजीपी हेड में वो टैक्सेबल होगा, और वो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू रिसीट नेचर है उसका। अब बात करते हैं गिफ्ट। नॉर्मली जो गिफ्ट होता है ना, वो कैपिटल नेचर का होता है, बट इवन दो इनकम टैक्स एक्ट में गिफ्ट पे भी टैक्स लगा है, सर्टेन टाइप्स ऑफ गिफ्ट पे टैक्स लगा है, उसके लिए स्पेसिफिक हेड है जहाँ पे वो गिफ्ट को हम टैक्स करते हैं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेरा चैप्टर 3 में दिया हुआ है, यूनिट 5 के चैप्टर 3 में, जब वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं एक और चीज़, इंडिया। अब इंडिया का भी डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 25 सेक्शन 2 क्लॉज 25A, जो बात करता है इंडिया का डेफिनेशन दिया है, जस्ट हम उसको रीड करते हैं आपके सामने। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी डिफाइन है उसको हम इंडिया बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। टेरिटोरियल वाटर, टेरिटरी तो बोले कि जो टेरिटरी आर्टिकल 1 में दिया है, उसका पानी, सी बेड, सब सॉइल, उसको भी हम इंडिया बोलेंगे। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है उसको भी हम इंडिया बोलेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी इंडिया बोलेंगे। एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड देयर एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, मतलब जल, थल, वायु एंड एवरीथिंग, सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। अपने टेरिटोरियल में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 1 में डिफाइंड है, वहाँ पे उस एरिया का जल, थल एंड वायु, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। अब स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन जो है ना, तो उसका भी कहीं रेफरेंस लेकर बताया गया है। स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एज रेफर टू इन द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। तो जो स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन का हम बात कर रहे हैं ना, उसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, ये एक्ट्स के थ्रू लिया गया है। ओके, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर इनकम जो होता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है इंडिया में, ठीक है, लेकिन उसको तब भी समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि एक थ्रेशोल्ड है 5000 से, अगर किसी का ऊपर इनकम आता है एग्रीकल्चर का ना, वो टैक्स उस पर टैक्स लगता है, ठीक है।
तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है, उसका सेपरेट कैलकुलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। तो आप लोग सोचोगे कि सर क्या बता रहे, पार्शियल इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम वर्ड सुन रहे हैं। नो इशूज़, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये वर्ड आपको मेरे दिमाग में बैठा दूंगा। आपके लिए मैं टैक्स को इतना ईजी बना दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, अब एग्रीकल्चर इनकम कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 1A, 2 क्लॉज 1A। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। उसके लिए मैंने अपने नोट्स में अच्छे से समराइज़ करके लिखा है। ठीक है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अभी जस्ट अपने नोट्स से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली इनकम ऑफ कल्टिवेटर बट ऑल्सो द लैंड होल्डर हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड्स। जैसे अभी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसान हैं, ठीक है, फार्मर है या कल्टीवेटर है, तो हम कल्टीवेटर हैं, तो जो कल्टीवेटर हम हैं तो हम खेती किए, तो खेती करने से जो हमको इनकम मिला उसको ही सिर्फ हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। हम एग्रीकल्चर उसको ही बोलेंगे जो मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो हम किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो उससे जो हमको रेंट मिल रहा है ना, वो रेंट भी मेरा क्या है? एग्रीकल्चर ही इनकम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द 3 वेज। 3 तरीका है जहां से हम बोल सकते हैं हमको एग्रीकल्चर इनकम अराइज होता है। पहला, रेंट और रेवेन्यू डेराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर कोई लैंड है उससे जो रेंट डराइव करते हैं, रेंट हम मिलता है हमको, या रेवेन्यू, रेंट या रेवेन्यू हमको मिलता है उस लैंड से जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, दूसरा, इनकम डराइव फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर, परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ठीक है, और दिस सेल बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेस्ड और रिसीव बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन द प्रोसेस मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर बी। अभी जैसे हम बताएं कि इसमें 3 कैटेगरी में आता। पहला कैटेगरी क्या बोला? रेंट। दूसरा कैटेगरी क्या बोला? इनकम की जो उस लैंड से हमको मिल रहा है किसी फॉर्म में, चाहे हम खेती करने से या परफॉर्मेंस, कुछ ऐसा प्रोसेस परफॉर्म किए जो एग्रीकल्चर हम खेती के जो उससे हमको प्रोड्यूस मिला, वो जो प्रोड्यूस निकला उस पर कुछ हम अपना फर्दर एंस किए जिसके कारण वो इमीडिएट रेडी हो गया मार्केट में बेचने के लिए। तो वो जो परफॉर्मेंस किए ना, उसके कारण जो इनकम डेराइव हुआ ना, वो इनकम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। ठीक है, तीसरा इसी में दिया है कि अगर जो हमको जैसे हम धान हो गए, धान बोलते हैं, जैसे हम लोग पैडी हो गए, ठीक है, तो पैडी है तो उसमें हमको फिर पैडी निकला तो उसके लिए बहुत सारा हमको प्रोसेस कराना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर खेती की हम पैडी का, लेट सपोज पैडी के बाद उस जो पैडी है उसको हम डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते, उसमें वो गेहूँ निकालना पड़ेगा। तो गेहूँ निकालने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज़ करना पड़ता है। तो वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके कारण जो हमको इनकम डिराइव होता है ना, जो जैसे किसी को तो हम देंगे ना काम करने के बदले में उसको हम पैसा देंगे कि मेरे लिए जो एग्रीकल्चर से मेरा जो पैडी निकला है उसको थोड़ा सा ऐसा फॉर्म में ला दो कि इसको हम बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस करते हैं ना, उससे जो इनकम डिराइव होता है ना, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। अब जो मेरा पैडी जो सेलेबल कंडीशन में आया, अब उसको जो बेचे ना मार्केट में, उससे जो हमको पैसा मिला, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्टली, थर्ड पार्ट क्या है? लास्टली, एग्रीकल्चर इनकम मे बी डिराइव फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अब थर्ड थिंग क्या बात करता है? एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं? कि जैसे मेरा खेत है, ठीक है, तो उस खेत में एक हमको एक बिल्डिंग चाहिए, एक स्पेस चाहिए, क्योंकि जो आदमी खेती करेगा उसको वहाँ पे सुपरविजन के लिए एक रूम जैसा रहेगा जहाँ पे उसको रहना पड़ेगा, या फिर कुछ स्टोर रूम जैसा रहेगा जहाँ पे स्टोर करेगा सामान भी और खुद सोएगा भी। वो बेसिक नीड है फॉर डूइंग दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो वो भी जो उससे भी जो हमको इनकम मिलता है ना, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। तो ये एग्रीकल्चर इनकम, हम इनकम इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करें तो हम सिंपल बताते हैं। लेट सपोज हम एक मेरा 10 एकर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो हमको मेरा एग्रीकल्चर इनकम किसको क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, हम अपना एग्रीकल्चर जो 10 एकर्स का लैंड है उसमें से लेट सपोज 5 एकर्स ऑफ लैंड मिस्टर बी को अब रेंट पे दे दी, तो रेंट पे दिए, वो खेती कर रहा है उस पर, तो वो जो रेंट हमको मिला वो मेरे लिए इनकम हुआ।
अब मेरे पास 10 एकर्स का था, तो 10 एकर्स में 5 एकर्स तो वहाँ पे दे दिए उसको, उससे हमको रेंट मिला, तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम हुआ। अब जो मेरे पास 5 एकर्स बचा, उस 5 एकर्स में हम क्या किए, उस 5 एकर्स में हम अपना खुद खुद लेबर लोग को लगा करके खेती कराए वहाँ पे। तो खेती कराए तो उससे हमको प्रोडक्शन हुआ, मतलब वहाँ से खेती कराए, लेट सपोज हम पैडी का ही खेती कराए, पैडी का खेती कराए, ठीक है। तो इनकम अभी तो बताते कैसे, सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब उस खेत में खेती कराए उससे, अब उस पे खेती कराए, ठीक है, उस पर्सन से। तो उस पर्सन के लिए जो हम उसको पैसा दिए ना, वो उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ठीक है। अब दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, कुछ जो प्रोसेस बताए, जो हम खेती कराए वहाँ से हमको पैडी निकला रॉ फॉर्म में, उसको मार्केट में सेलेबल नहीं है, उसको सेलेबल बनाने के लिए भी कुछ पर्सन को हायर किए, उसको हम पेमेंट किए। तो जो हम पेमेंट किया ना उसको, वो भी मेरा क्या है, काइंड ऑफ उस पर्सन के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं द सेल बाई कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच। अब जो मेरा सेलेबल फॉर्म में है उसको हम बेचे, उससे हमको पैसा मिला, तो जो हमको पैसा मिला ना, वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। अब मेरे पास 5 एकड़ था जिसको हम रेंट पे दिए, 5 एकड़ खुद कराया, यूज़ कराया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब जो मेरे पास लास्ट में, अब हम बात करते हैं 5 एकड़ ये हुआ। अब इसी जो 5 एकड़ का जो हम यूज़ कर रहे थे, उसमें कुछ स्पेस था, ठीक है, रूम जैसा, तो उसको भी हम रेंट पे दिए। तो उसको जो रेंट पे दिए ना, उससे भी जो हमको इनकम आ रहा है ना, वो भी मेरा क्या, एग्रीकल्चर इनकम है। तो इन शॉर्ट हम ये बोले एग्रीकल्चर इनकम, ये मतलब नहीं कि जो हम खेती से जो पैसा कमाए बस वही मेरे एग्रीकल्चर इनकम है, रेंट ये सब भी मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अबव मेंशन्ड पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। इसको एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको हम कब मानेंगे, वो एग्रीकल्चर ही इनकम है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, उस लैंड से हमको रेंट या रेवेन्यू मिलेगा, वो लैंड सिचुएटेड होना चाहिए इंडिया में, और लैंड यूज़ होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अपॉर्चमेंट ऑफ इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कुछ सामान का खेती करें किस चीज़ का, उसी जो मेरा आउटपुट निकला ना, उस आउटपुट को हम यूज़ कर रहे हैं कुछ नया आउटपुट बनाने के लिए, उसको जो मेरा आउटपुट निकला उसको एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं कुछ नया आउटपुट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम शुगर केन का खेती करते हैं, गन्ना हम लोग जानते हैं, गन्ना खेती करते हैं, उससे चीनी बनता है। तो गन्ने का खेती करते हैं और वो जो गन्ना निकलता है उसी गन्ने को यूज़ करके हम चीनी बनाते हैं, ठीक है। तो हम दो काम करते हैं, गन्ना भी उगाते हैं और चीनी बना करके बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा केस होता है। तो इस केस को में भी मेरा दो टाइप का इनकम होगा। एक तो हम जो शुगर बनाए उसको मार्केट में, जिससे हमको बिजनेस हो गया मेरा, वो इनकम हो गया। अब मेरे को एग्रीकल्चर इनकम भी हो रहा है, यहाँ पे कैश फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि हम जहाँ शुगर केन उगा रहे हैं। तो शुगर केन क्या है, मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्रीकल्चर इनकम में कवर होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसा केस मिलेगा तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। जैसे कि आप मिस्टर ए है, ठीक है, आपका शुगर केन उगाते हो, उससे फिर आप फर्दर कुछ प्रोसेस में करके आप उसको शुगर बनाकर बेचते हो, ठीक है। तो आपका पहला इनकम होगा बिजनेस इनकम। उसको कैसे निकलेगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ शुगर। लेट सपोज आप शुगर उगाया, शुगर आपको 10 करोड़ का बिका, 10 करोड़ कर लिए। अब आप जो शुगर 10 करोड़ का बेचे, तो उसके लिए इनपुट आप क्या दिए, शुगर केन दिए। तो शुगर केन का हम क्या वैल्यू यहाँ पे पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि अपना ही उगा कर अपना ही हम बिजनेस में डाल रहे हैं, तो आप लोग बोलेगे वैल्यू जीरो। बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो भी इनकम टैक्स में दिया हुआ है। वो बोलता है कि ऐसा वो प्राइस, जिस प्राइस पे मार्केट में मेरा जो शुगर केन है वो इजिली सेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द शुगर केन, माइनस कर दिया, फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगा, तो ये दोनों माइनस करने के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या होगा, बिजनेस इनकम फ्रॉम सेल ऑफ दिस शुगर, ठीक है। अब हमको एग्रीकल्चर इनकम भी हुआ है, तो एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। तो इस टाइप के एसएससीज के केस में हमको ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट 3 ऐसे रूल दिए हुए हैं, 3 रूल डिफाइंड किए हुए हैं, रूल 7A, रूल 7B एंड रूल 8। वहाँ पे कुछ 3 स्पेशल काइंड ऑफ आइटम्स हैं, जिस सर्टेन केसेस हैं जहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन करते हैं, प्रोपोर्शन परसेंटेज डिफाइन दिया हुआ है कि आपका जो टोटल इनकम होगा उसका इतना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और इतना परसेंट आपका बिजनेस इनकम मानेंगे। इसमें पहला है आपका आर, इसको ऐसे लर्न करना हमको, RCT, ठीक है। आर मतलब रबड़, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट
डिराइव फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। लेट सपोज हम इंडिया में सेलर है, हम मेरा रबर का प्लांट है, और वही रबर का प्लांट से जो हमको रबर निकलता है उससे ही हम रबर प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में बेचते हैं। तो उस केस में जो हमको टोटल वैल्यूड इनकम निकलता है ना, उसका 65% मेरा एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं और 35% हम बिजनेस इनकम मानते हैं। ठीक है, उसी के साथ रूल 7B में क्या दिया हुआ है आपका, कॉफ़ी का दिया हुआ है। हम कॉफ़ी उगाते भी हैं और कॉफ़ी को बेचते भी हैं, उगा करके उसको ग्रो, जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, वो कॉफ़ी बेचते हैं जो खुद ही हम उगाए हैं, केयर्ड बाई भी ग्रोन एंड क्योर्ड बाई द सेलर इन इंडिया। हम उगाए हैं, उसको अच्छे से खुद से देखभाल करने के बाद उसको सेलेबल फॉर्म में ला करके मार्केट में बेचे हैं। तो उसमें 75% को एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं, 25% को बिजनेस इनकम बोलते हैं। कभी कभी इसमें एक और केस दिया है कि ग्रोन एंड क्योर्ड एंड रोस्टेड बाय द सेलर, उगाए भी, ध्यान भी रखे, सेलेबल फॉर्म में भी लाए। थर्ड नंबर पे हम क्या, उसको रोस्ट भी किए, मतलब सुखा करके थोड़ा और उसको अच्छा बनाए। उस केस में मेरा 60% क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% बिजनेस इनकम होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको रोस्ट किए, मीन्स और भी अपना कुछ एक्टिविटीज़, उस जो मेरा प्रोडक्ट आया एग्रीकल्चर से, उसमें अगर कुछ और भी अपना वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ उसको और मॉडिफाई करते हैं, तो वैसे ही मेरा प्रोपोर्शन कम हो गया। जिससे पहला केस में आपका 75% एग्रीकल्चर इनकम बोलते थे, 25% बिजनेस इनकम। अभी जस्ट क्या हो गया, 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम और 40% आपका बिजनेस इनकम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। टी उगाए भी हम और उसको अच्छा प्रोसेस करके मार्केट में बेच भी रहे हैं। उस केस में मेरा एग्रीकल्चर इनकम 60% होगा और बिजनेस इनकम मेरा 40% होगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जो मैंने बता दिया आपको। इसको RCT से याद करना है, रबर, कॉफ़ी एंड टी। रबर RCCT ऐसा बोल सकते हैं। रबर मतलब हो गया आपका 65%, 30%, 65%, 30%। और सी मतलब हो गया कि क्योर्ड एंड ग्रोन, वो होगा तो वहाँ पे 75%, 25%। ग्रोन एंड क्योर्ड एंड रोस्टेड वैसा केस होगा तो 60%, 40%। एंड इनकम फ्रॉम सेल और टी, जब टी का बात आएगा 60%, 40%। तो 4 पॉइंट्स ऐसे याद होंगे, 65%, 35%, 75%, 25%, 60-40 एंड 60-40। क्लियर है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम फार्म लैंड शैल बी एग्रीकल्चर इनकम इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जो मेरा क्या होता है ना, समटाइम्स कि हम मेरे पास फार्म लैंड होता है, जो मेरा फार्म लैंड है उसको भी उससे जो हमको इनकम मिलता है ना, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। कब बोलते हैं, मेरा जो कुछ फार्म है, क्या बोलते हैं, फार्म लैंड है, जैसे मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें कुछ एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर सब करते हैं, लेकिन तो उसके अलावा भी उससे सटा हुआ कुछ एरिया है जस्ट अटैच टू माई द एग्रीकल्चर लैंड, उससे भी कुछ कनेक्टेड एरिया है सर्टेन एरिया तक का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे एग्रीकल्चर, उससे भी जो इनकम मेरे को मिलता है ना, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। सिंपल करते हैं इसको कि एक मेरा एक कुछ एरिया दिया हुआ, मेरा एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, उससे कनेक्टेड, जस्ट कनेक्टेड कुछ सर्टेन एरिया तक का जो प्लॉट होता है ना, उसको हम बोलते हैं फार्म लैंड है मेरा। ठीक है, तो फार्म लैंड से भी जो इनकम डिराइव होता है ना, उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। तो इस पर क्लैरिटी हम लोग को गवर्नमेंट को लाना था, इनकम टैक्स एक्ट में इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से, इसलिए क्योंकि सबको बोलता है कि मेरा ये इतना सारा एरिया जो उससे भी कनेक्टेड है, जो भी मेरा एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको भी हम एलिजिबल बना करके उससे अच्छा प्रॉफिट कमा करके दिखाते कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम है। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाया गया। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन मैंने अपने नोट्स में अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया है, आप रीड करोगे क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब उसको जस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है। कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन, इट शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, मतलब उसके इमीडिएट, अपना जो लैंड है उससे इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए। दूसरा, रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू और द कल्टिवेटर रिक्वायर इट एज अ ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस। जो फार्म लैंड है ना, उसका रिक्वायरमेंट भी हमको बताना होगा कि ये मेरा जो है, ये मेरे को रहने के लिए चाहिए या स्टोर हाउस के लिए, वो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है कि लैंड शैल बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट एज सच। इसमें क्या है, बोलता है कि ये जो मेरा लैंड है, इसको फार्म लैंड से जो इनकम है उसको जो इनकम डिराइव कर, उसको एग्रीकल्चर इनकम तभी बोलेंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, इमीडिएट विसिनिटी में होना चाहिए वो। दूसरा, रिसीवर ऑफ रेंट जो है उसको, वो जो लैंड चाहिए होगा फार्म लैंड, वो उसको चाहिए होगा ड्वेलिंग के लिए या फिर स्टोर रूम बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा,
एडिशनल कुछ कंडीशन दिया है कि ये जो लैंड है ना ये असेस होना चाहिए लैंड रेवेन्यू के पास, और उस पर मेरा टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लैंड रेवेन्यू पे वो असेस होना चाहिए और उससे उसको गवर्नमेंट को बेनिफिट मतलब जो उसका चार्जेस होता है वो मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वेयर द लैंड इज नॉट सो असेस टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज नॉट सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स। वो जो लैंड है ना उसमें लैंड रेवेन्यू को वो लैंड रेवेन्यू उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, उस पर लैंड रेवेन्यू पे मतलब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जाता उस लैंड से। ठीक है। उस केस में हम क्या बोलते हैं, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया एज कंप्रेस्ड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा लैंड होना चाहिए ना वो वहाँ नहीं सिचुएटेड होना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन मेरा जो है ना 10,000 से कम हो। ठीक है। नो सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो लैंड है ना वो मेरा वहाँ पे सिचुएटेड नहीं होना चाहिए जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हो और एक कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ पे मेरा पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, वैसा एरिया होगा तो उसको हम लोग, वैसा एरिया नहीं होना चाहिए तो उसको हम फार्मलैंड नहीं बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा, इट शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन एनी एरिया, it should not be situated in any area within such distance measured aerially in relation to the range of population as shown here under। इसमें कुछ आपका पॉपुलेशन का रेंज दिया है, मतलब एरियली मेजरमेंट किया है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर मेरा जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे अगर कनेक्टेड है तो उसको हम फार्म लैंड बोलेंगे, और उससे जो इनकम डिराइव होगा उसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। तो इससे थोड़ा इसमें स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए क्या किया है, कुछ डिस्टेंस दिया है कि लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर तक का आपका डिस्टेंस होगा लोकल म्यूनसिपैलिटी से, म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड से, तो उस केस में आपका पॉपुलेशन अगर 10,000 से ऊपर है, लेस देन इक्वल्स टू 2 किलोमीटर और पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है, तो उस केस में हम उसको फार्मलैंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। दूसरा, आपका डिस्टेंस जो है ना कहाँ से, म्यूनसिपैलिटी से और कैंटोनमेंट बोर्ड से डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा है बट 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर से कम है या फिर 6 किलोमीटर तक है और पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, तो उस केस में हम उसको डिक्लेयर करेंगे। तीसरा, आपका डिस्टेंस 6 किलोमीटर से ज़्यादा है बट 8 किलोमीटर से कम है और या 8 किलोमीटर है और उस केस में पॉपुलेशन आपका 10 लाख से ऊपर है, तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, आपका फार्मलैंड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका इतना डिटेल इसलिए दिया है कि जो मेरा इनकम डिराइव जो बोल रहे हैं फार्म लैंड से, सैलरी एग्रीकल्चर इनकम, ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी जा कर के हम उसको बोलेंगे कि वो मेरा एग्रीकल्चर वो है, क्या बोलते हैं, फार्म लैंड है और उससे जो इनकम डिराइव हो रहा है वो मेरा एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है। तो इसके लिए हम जस्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एरियली मेजर है अगर वो 1 किलोमीटर का है और पॉपुलेशन मेरा 9,000 है, in that case whether this area will be covered as a farmland or not, the answer is no, because condition क्या है कि आपका the condition क्या है कि आपका distance less than equals to 2 किलोमीटर होना चाहिए, तो मेरे केस में 1 किलोमीटर कंडीशन सेटिस्फाइड, बट पॉपुलेशन क्या 9,000 है, नॉट ग्रेटर देन 10,000, thus it will not be considered as a farmland। ओके। तो फार्म लैंड यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड से अलावा एक्स्ट्रा लैंड जो हमको चाहिए रहेगा, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ ड्वेलिंग। जैसे मेरा 10 एकड़ का ज़मीन, जैसे अपने एग्जांपल 5 एकड़ का बोले थे हम, उस केस में क्या बोल रहे थे कि मेरा उसी 5 एकड़ के ज़मीन के अंदर में ही जगह ही है, बट अभी जो केस बोल रहे हैं कि 5 एकड़ का जो मेरा ज़मीन है उसके अलावा मेरा कुछ स्पेस है, तो उस स्पेस में हमको जो सामने वाला पार्टी को जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेगा उसको रहने के लिए या फिर स्टोर हाउस बनाने के लिए वो एरिया चाहिए, तो उसको भी हम कब बोलेंगे कि मेरा वो फार्म लैंड है, तब बोलेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशंस दिया था। ठीक है। कंडीशन क्या था, वो इमीडिएट विसिनिटी में ऑफ द लैंड के बगल में होना चाहिए, दूसरा ये ड्वेलिंग के लिए चाहिए होगा या फिर स्टोर हाउस बनाने के लिए। कुछ एडिशनल कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो लैंड है ना वो लैंड रेवेन्यू में असेस्ड होना चाहिए। अगर वो लैंड रेवेन्यू में असेस्ड नहीं हो रहा है इन दैट केस, तो उस केस में हमको क्या चेक करना होगा, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विच इज़ कवर्ड अंडर म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ पे पॉपुलेशन मेरा 10,000 से कम है। ठीक है। दूसरा केस बोलता है कि इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन एज सोन इन हियर अंडर। यहाँ पे कुछ और कंडीशन बोलता है कि ये इस रेंज में सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस एरियली जो मेजर किए हैं वो लेस देन 2 किलोमीटर है और पॉपुलेशन में लास्ट सेंसस का 10,000 से ऊपर का जा रहा है, 10,000 से ऊपर का जा रहा है, इन दैट केस हेलो
या एक्चुअली जस्ट अभी जो एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट ये एग्रीकल्चर लैंड का, जहाँ पे बता रहे थे फार्म लैंड का कॉन्सेप्ट, उसको मैं थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई गेस मैंने थोड़ा मिस्टेक बोला उस पॉइंट पे। उसमें क्या है एक्चुअली में कि जो मेरा फार्म लैंड है ना, वो फार्म लैंड को से इनकम जो डेराइव होगा वो एग्रीकल्चर इनकम कब बनेगा वो हमको चेक करना है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस दिए हैं। कंडीशन पहला नंबर क्या है कि वो मेरा इमीडिएटली विसिटी ऑफ द लैंड में से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, रिसीवर जो होना चाहिए, रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू रिक्वायर्स होना चाहिए उसको ड्वेलिंग के लिए या फिर स्टोर हाउस के लिए। ठीक है। तीसरा, एडिशनल कंडीशन जो सेटिस्फाई करने बोल रहा है कि लैंड जो होना चाहिए वो असेस्ट होना चाहिए लैंड रेवेन्यू का। अगर किसी केस में अगर वो लैंड रेवेन्यू से असेस्ट नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया, ठीक है, एज कंप्रेस्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड विच हैज़ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। जहाँ पे पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है उस एरिया में should not which has population not less than 10,000। जहाँ पे 10,000 से पॉपुलेशन कम नहीं है तो उस एरिया में वो सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड, वो वहाँ पे नहीं सिचुएटेड होना चाहिए जहाँ पे कुछ एरियली मेजर्ड शॉर्ट डिस्टेंस है, उसके अगेंस्ट में कुछ पॉपुलेशन डिटरमाइन किया गया है कि अगर एरियली मेजर्ड शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ से, म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया से या फिर कंटेनमेंट बोर्ड से, अगर लेस देन 2 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर का है तो उस केस में भी हम उस एरिया जो फार्म लैंड है उससे जो इनकम डराइव होगा उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। तो मेरे एग्जांपल में जैसे मेरा 1 किलोमीटर के एरिया पड़ता है म्यूनसिपैलिटी से, बट वहाँ का पॉपुलेशन जो है मेरा वहाँ पे 9,000 ही है, पॉपुलेशन मेरा 9,000 है। तो इन डैट केस क्या होगा कि हमको जो यहाँ पे जो इनकम डराइव होगा उस फार्म लैंड से वो मेरा क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा उसको। ठीक है। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन विथ लैंड। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इवन इफ रिसीव्ड बाय टिलर और ए लैंडलॉर्ड, बट नन एग्रीकल्चर इनकम cannot be become एग्रीकल्चर इनकम ऑन अकाउंट ऑफ इनडायरेक्ट कनेक्शन। लेट्स एग्जाम्पल एक लिखा है मैंने इसमें, मिस्टर ए रिसीव 10% कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर ए इनकम वुड नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम इवन इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है। जैसे कि मिस्टर ए है वो रिसीव करता है 10% कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी। ठीक है। तो उस केस में जो मिस्टर बी कमीशन रिसीव करता है 10%, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। ठीक है। सर्टेन इनकम टैक्स इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ इनकम है जिसको टैक्स हम प्रीवियस ईयर में ही कर लेते हैं। ठीक है। उसका रीज़न मैं फर्दर आगे चैप्टर्स में आएंगे तो एक्सप्लेन करूंगा, बट वहाँ पे क्या केसेस हैं जिस केस में मेरा जो प्रीवियस ईयर में ही इनकम टैक्स होगा, क्योंकि इन जनरल प्रैक्टिस क्या है कि इनकम जो होता है मेरा वो असेसमेंट ईयर में टैक्स होता है। तो कुछ कंडीशंस दिए हैं, लाइक शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस होता है उसका इनकम जो है उसको हम प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाते हैं, पहला। दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया से जा रहा है उस केस में उससे इन टैक्स हम अब उसी साल में ले लेंगे, क्योंकि अगले साल का पता नहीं, उसी साल में टैक्स ले लेंगे। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फॉर्म फॉर पार्टिकुलर इवेंट, कुछ इवेंट के लिए हम ये चीज़ फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में भी हम उसी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेंगे। फिर फोर्थ क्या है, पर्सन इन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, कोई पर्सन ऐसा कर रहा है कि अपना प्रॉपर्टी किसी और को उस साल में ट्रांसफर कर रहा है कुछ टैक्स बचाने के लिए, इन दैट केस हम क्या करेंगे, उस पर्सन से टैक्स उसी साल में ले लेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगर कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसका भी टैक्स हम उसी साल में कलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। क्या होता है कि कुछ इनकम जो है असल से टैक्स बचाने के लिए उसका सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करता है, बट गवर्नमेंट उसके लिए कुछ इस सारे कैटेगरीज को कुछ के लिए कुछ सेक्शंस डिटरमाइन किया है, बनाए हैं, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये मेरे अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है। कैश क्रेडिट, अगर आपके अकाउंट में अचानक से क्रेडिट आते जा रहा है बट आपके पास उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको हम मान लेंगे कैश क्रेडिट और उस पर आपका टैक्स लग जाएगा। दूसरा, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, कुछ पैसा हम हुंडी एक फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हुआ यूज़ होता था, तो उसमें हम लोग हुंडी के अगेंस्ट में कुछ पैसा बोरो किए, तो उसका भी अगर मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा या फिर ऐसे ही अगर हुंडी के अगेंस्ट में हमने कुछ पैसा बोरो किया तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, उस पर टैक्स लगा देंगे। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, आपने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, लेट्स सपोज,
बट आपका जो सोर्स है पैसा का वो ही नहीं पता, बट आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का दिख रहा है, तो इन डैट के जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ना, उसको भी आपको क्या बोल दिया जाएगा, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम में कैटेगरी में डाला जाएगा। उस पर हायर रेट पे टैक्स लगेगा, उसका रेट मैं आगे चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा जब ये डिटेल में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज, इन्वेस्टमेंट हम किए 10 करोड़ का, बट एक्चुअल में हम शो कर रहे हैं 5 करोड़ का ही, तो उसमें जो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा है जो नहीं शो किए उसको भी हम अनडिस्क्लोज इनकम बोलेंगे, उस पर हेवी रेट पे टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया अचानक से है, बट हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को रिटर्न के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर रहे, इन डैट केस जो मेरे पास अनएक्सप्लेन्ड मनी है उसको भी हम क्या मानेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, हम बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, मेरा इनकम है 5 लाख का बट हम खर्च 25-30 लाख कर रहे हैं, इस केस में भी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चा कर रहे हैं अगर उसका जो पैसा लग रहा है खर्च करने में उसका अगर हम सोर्स प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम, उस पर भी हेवी रेट पर टैक्स लग जाएगा। नाउ अब बात करते हैं रेट ऑफ टैक्स, सरचार्ज एंड सेस। ये तो मैं लास्ट क्लास में जब लाइक फर्स्ट पार्ट वीडियो में वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये रेट का सोर्स क्या होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, और बोथ, ठीक है, यहाँ ये सोर्स ऑफ रेट्स है। अब इंडिविजुअल, HUF, फर्म, एसोसिएशन, पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AJP, इसके लिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम है 115 BAC, 115 BAC में ये इसके लिए रेट्स डिफाइन किए हुए हैं। सॉरी, नॉट फॉर फर्म, इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये कुछ कैटेगरीज ऑफ असेसीज हैं, उनके लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है 115 BAC। वहाँ पे अप टू 3 लाख नील होता है, 3 लाख से 6 लाख तक का 5%, 6 लाख से ऊपर से लेकर के 9 लाख तक का 10%, 9 लाख से ऊपर से लेकर के 12 लाख तक का 15%, 12 लाख से ऊपर से लेकर 15 लाख तक का 20%, एंड अबव 15 लाख हमारा जो होता है वो 30% होता है। ठीक है, नाउ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर टेकिंग दिस न्यू रिजाइम, उसमें क्या है कि बहुत सारे एग्जाम्पशन को हटाया है, क्योंकि हमारा ये जो न्यू रिजाइम है इसको फ्रॉम दिस कमिंग असेसमेंट ईयर से उसको नहीं, प्रीवियस असेसमेंट ईयर से ही उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम बनाया। बट इवन दो अभी मेरे पास एक ऑप्शन है ओल्ड रिजाइम में भी जाकर टैक्स पे कर सकते हैं, तो न्यू रिजाइम में हमको टैक्स पे करने के ऑप्शन चूज़ करने के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्लैब है वो एज़ कम्पेयर टू प्री ओल्ड रिजाइम, यहाँ पे स्लैब मेरा बड़ा ज़्यादा है, 3 लाख तक में मेरा 0, 3 से 5 तक, 3 से 6 तक में 5%, ठीक है, 6 से 9 से लेकर के आपका जाता है तो 10%, 9 से 12 जाता है 15%, 12 से 15 जाता है 20 एंड अबव 15। बट ओल्ड रिजाइम में क्या था, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 हो गया 5%, 5 से आपका 10 हो जाएगा, 5 से 10 तक आपका जब इनकम जाएगा तो उसके इसमें 20% एंड अबव 10 लाख आपका 30%, तो वहाँ पे रेट ज़्यादा था, तो यहाँ पे रेट कम किया, बट यहाँ पे बोला कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं देंगे, लाइक एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, बहुत सारा रिडक्शन नहीं मिलेगा। कुछ एग्जाम्पन्स के नाम लिखे मैंने, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A जो HRA का बात करता है, 1014 है, फिर 80C से 80U जो चैप्टर 6 से में रिडक्शन दिया उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ तो जो स्टेप नंबर हमारा अराउंड 12 या 13 जो आता है, नहीं, स्टेप नंबर 10 या 9, स्टेप नंबर 9 जो हमारा कंप्यूटेशन का आता है, वहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है ना, तो वहाँ पे चैप्टर 6 से का डिडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, सब चीज़ आगे आएंगी, तो उसका भी बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा जब हम अपना डिफ़ॉल्ट रेजिम को चूज़ करेंगे तो, ठीक है। अब कुछ सरचार्ज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का। अब ये जो सरचार्ज है हम लोग का, इसमें हम लोग बात करते हैं सरचार्ज जो डिफ़ॉल्ट रिजाइम 115 BAC है, उसमें सरचार्ज का क्या है कि अगर आपका टोटल इनकम में डिविडेंड को जोड़ने पे या फिर कैपिटल गेन जो टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1112A, 1111A एंड 112, ये 3 सेक्शन का, ये 4 चीज़ इनकम आपके टोटल इनकम में है, उसको मिला करके आपका इनकम जो टोटल इनकम बनता है वो ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, तो उस केस में आप पे सरचार्ज का रेट 10% लग जाएगा। अब सेकंड केस, अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग 4 कैटेगरी का इनकम, क्या, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 1112A एंड 1111A, तो ये सबको मिला करके अगर आपका इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर जाता है बट लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़, तो उसके साथ आपका रेट ऑफ सरचार्ज 15% लगेगा। अगर थर्ड केस, अगर आपका टोटल इनकम डिविडेंड को हटाने के बाद कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 1111A, 112 एंड 112A को हटाने के बाद अगर वो 1 करोड़ से ऊपर जाता है लेकिन 2 करोड़ से कम होता है या फिर 2 करोड़ तक का होता है, तो उस केस में आपका सरचार्ज लगेगा 25%। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ सरचार्ज जो होगा ना, पेएबल ऑन पोर्शन ऑफ डिविडेंड,
इनकम एंड कैपिटल गेन, उस पर जो मेरा जो रेट ऑफ सरचार्ज लगेगा वो 15% लगेगा। ठीक है। और चौथा केस क्या होता है, वे टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, कैपिटल गेन, और ये जो भी कैपिटल गेन 3 हेड पता है 1112, 1112A एंड 1111A, उसमें अगर ग्रेटर देन 2 करोड़ आता है, इन दैट इन केस नॉट कवर अंडर 3 एबव, अगर थर्ड में वो कवर नहीं होता तो उसमें 15% का हम लोग लगा देंगे। ठीक है। नाउ मार्जिनल रिलीफ, एक पॉइंट आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा इनकम बढ़ता है, लेट्स सपोज 1 लाख से, बट मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाता है 2 लाख से, तो वैसे केस को अवॉइड करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने नोट्स में लिखा है 50 लाख का एक एग्जाम्पल कि अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जाता है बट लेस देन 1 करोड़, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होता है, उस केस में हमको कैसे मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं। स्टेप 1, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन सच इनकम। ठीक है, इस पर आपने नॉर्मल इनकम निकालो, उस पर सरचार्ज ऐड करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूट टैक्स ऑन ₹50 लाख। अब आप 50 लाख पे अपना टैक्स निकालो। अब जो आपको स्टेप 1 में आया था उस और उसमें जो स्टेप 1 में आपका टोटल इनकम आ रहा है, जो 50 लाख को ऐड करने के बाद, और जो 50 लाख उसमें से माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस हो गया वो स्टेप 3 में निकला। स्टेप 4, ऐड अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 में जो आप 50 लाख पे जो अपना टैक्स निकाले और उसको जो एडिशन हुआ इनकम, उस पर आप जो इनकम आया वो दोनों ऐड कर दिए, तो स्टेप 4 बन गया। स्टेप 5, इनकम टैक्स लायबिलिटी वुड बी लोअर ऑफ अमाउंट डेराइव्ड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 4। इन सिंपल हम बोल रहे हैं कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है या 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। उसका कैलकुलेशन क्या है कि आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो। ठीक है, 10% का सरचार्ज लगाकर अपने टोटल इनकम पे। ठीक है, फिर क्या करो, आप 50 लाख पे अपना टैक्स लायबिलिटी निकालो। ठीक है, अब 50 लाख निकाल लिए, अब टोटल इनकम जो आ रहा है उसमें 50 लाख माइनस करो, जो वैल्यू आएगा वो। ठीक है, अब जो आपका वैल्यू स्टेप 3 और स्टेप 2 में आता है उस दोनों को ऐड करो। ठीक है, स्टेप 5 में इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, लोअर ऑफ द अमाउंट डेराइव इन स्टेप 1 एंड स्टेप 4। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स का रेट क्या चलेगा। डोमेस्टिक कंपनी पे टैक्स का रेट चलेगा आपका 25% एंड 30%। तो 25% के लिए क्या है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर आपका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ था, तो आप पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो 25% लगेगा। और सरचार्ज आपके लिए क्या डिफाइंड है, 7% एंड 12%। अगर आप टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाता है, 10 करोड़ से नीचे रहता है, उस केस में आपका 7% लगेगा। अगर वही सरचार्ज आपको 12% लगेगा अगर आपका टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर जाता है। फॉरेन कंपनी, रॉयल्टी FTS रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, तो उसमें 50%, अदर केसेस 40%। यहाँ सरचार्ज क्या है, 2% और 5%। 2% अगर आपका टोटल इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, तो उस केस में 2%, और 5% इफ योर टोटल क्या बोलते हैं इसको, टोटल इनकम ग्रेटर देन 10 करोड़, तो 5%। अब एक और चीज़ आता है रिबेट। न्यू रिजाइन में जो रिबेट का अमाउंट लिया हुआ है ना, वो 7 लाख का दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम अप टू 7 लाख होता है तो इस केस में आपको रिबेट मिलेगा अप टू अमाउंट 25,000 और एक्चुअल रेट ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम जिसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए मैंने एक नोट्स में अपने इंकॉर्पोरेट किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसका कैसे कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स. A method has been laid down to levy tax on agriculture income in an indirect way. This concept called partial integration of agriculture income with non-agriculture income. कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए 5,000 से ऊपर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पर एनम में, नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर डिफ़ॉल्ट रिजाइम और सेक्शन 115 BAC के लिए आपका जो इनकम नॉट चार्जेबल टू टैक्स है या फिर मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो डिफाइंड है वो 3 लाख का है। बट ऑप्शनल रिजाइम में क्या था, 2.5 लाख रुपए था। फिर आपका एज अगर 60 और 60 से कम है तो आपका 60 या 60 से ऊपर है तो इस केस में आपका 3 लाख का, अगर आपका एज 80 से ऊपर है तो इस केस में आपका 5 लाख का लगता था। इसका कुछ मेथड है, इसको 5 स्टेप पर डिफाइन किया। पहला, ऐड नॉन एग्रीकल्चर इनकम विथ नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड कंप्यूट टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। सिंपल, 2 टाइप के इनकम होंगे मेरे को, एग्रीकल्चर इनकम होंगे, नेट एग्रीकल्चर इनकम या फिर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों ऐड करके उस पर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर दो। स्टेप नंबर 1 खत्म।
स्टेप 2, ऐड करो नॉन नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एंड कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी। आप अपना नेट एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 2 क्लोज। स्टेप 3, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। 2 को 4 में से माइनस करो, 2 को स्टेप 1 में से माइनस करो, रिजल्ट आया। स्टेप 3, स्टेप 4, देन the amount so arrived shall be increased by surcharge if applicable, reduced by rebate if applicable, thereafter it would be increased by HEC 4%। तो वही आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन। अभी ये तो अभी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सारे को एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट क्या रह गया है इस चैप्टर में, हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि स्लैब रेट्स ये सब कुछ दिए हैं। उसके लिए मैं संडे को एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स से मैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, तो टिल देन आप मेरे नोट्स से रिवाइज करते रहो, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रिवाइज करो। इन केस किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। I would happy to address, and also I would like to discuss something interesting related to income tax, which is like ये है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स का इतना रिक्वायरमेंट, इतना डिटेल में, इतना लॉ हर चीज़ पे क्यों बना हुआ है। फॉर एवरीथिंग देयर इज़ लॉजिक। तो वो लॉजिक्स हैं जिसके लिए हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट्स को बनाया हुआ है बेस्ड ऑन लॉजिक। तो अभी ये जो हम बता रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा और मोटिवेट करता हूँ कि कैसे और इस पर आप अच्छा कमांड ला सकते हो खुद से भी एफर्ट लगा करके। तो जैसा ये हमारा एक यहाँ पे आता है कि हम अपना 15th स्टेप पढ़ा है। ठीक है, तो 15 स्टेप पे आपको आपके टिप पे होना चाहिए 15 स्टेप्स। ठीक है, तो वो 15 स्टेप्स को आप जैसे जैसे रिकॉल करोगे ना, 5-6 बार पढ़ते जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिक ही वो दिमाग में बैठ जाएगा। 15 स्टेप हमको होते हैं। तो होल चैप्टर, होल सिलेबस इज डिवाइडेड इन दिस 15, मीन्स आई कैन से होल 15 स्टेप्स में ही आपका पूरा सिलेबस रिवॉल्व करता है। तो उस 15 स्टेप्स को अच्छे से कर लेना है अपने को। ठीक है, तो वो सारे का अब जैसे बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होगा, फिर फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सारे जो भी स्टेप्स हैं उसको एलोबरेट करके देखते जाएंगे क्या क्या वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये तो इतना बात हुआ। तो अब बात करते हैं कि अब आप लोग, क्योंकि अभी जस्ट फाउंडेशन पास किए, अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा आपका मई में या फिर नवंबर में, तो आपको तो भी इनकम टैक्स लगता होगा कि क्या है इसमें, कैसे करना है। तो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि आप इसको आप इनकम टैक्स को आप ऐसे पढ़ाई करो कि इसको मतलब इस पर मतलब कि सोचो इसको कि बहुत इजी है, मतलब इसको ऑलवेज ट्रीट लाइक कि बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होता है बट ईजी है, यू कैन मैनेज। बस अपने दिमाग को हमेशा ये मत, दिमाग पे इस सब्जेक्ट का कभी लोड मत लाने देना। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जितना भी याद रहेगा ना, तो आप फाइनल जब एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो आप उस पर कंफर्ट नहीं ला पाओगे। तो हम क्या करेंगे, आपको और अच्छे मोटिवेट करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस को मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करके प्रैक्टिस भी करा दूंगा आपको। और आपके साथ मैं जूम पे वीकली बेसिस पे, वीकेंड पे एक सेशन रखूँगा, लाइव सेशन, जहाँ पे आपको कुछ भी क्वेरीज है वहाँ पे मैं एड्रेस करूँगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ऑल्सो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो कभी भी मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन होता है। और ऑल्सो आप टॉपमेट पे 1-to-1 सेशन, इन केस आपको मोटिवेशन चाहिए या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगता है कि कैसे हम और अपने बाकी पेपर्स का प्रिपरेशन करें, ऑन अदर पार्ट ऑल्सो आई कैन गाइड यू। आई हैव माई वेब पेज ऑन टॉपमेट वेयर यू कैन कनेक्ट विथ मी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड अभी हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स में एंड रिजल्ट क्या होता है। तो इनकम टैक्स में हम ऑफ द ट्रैक एज योर मेंटोर, लाइक आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स में जैसे हम लोग का गवर्नमेंट को, जैसे हम लास्ट लेक्चर में बताया कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए अपना देश को चलाने के लिए। तो वो रेवेन्यू कहाँ से लेता है, हम लोग के ही इनकम से कुछ कट लेता है, इसको हम बोल सकते हैं जिस कट लेता है वही मेरा क्या हो गया, इनकम टैक्स, या फिर जीएसटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो उस 2 फॉर्म में लेता है हम लोग से गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है,
ये चीज़ हुआ। अब बात करते हैं कि हम लोग का इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से कैलकुलेशन किए, अब गवर्नमेंट को फिर लास्ट ये इसका कब क्या होता है, कब क्या करना होता है, तो हम एवरी प्रीवियस ईयर तक में अपना इनकम अर्न करते हैं पूरा, उसका हिसाब अपने पास रखते हैं। अब असेसमेंट ईयर जब आता है वहाँ पे एक डेट्स दिया हुआ है कि 31 जुलाई तक का हमको नॉर्मल अपना रिटर्न को फाइल करना है। रिटर्न फाइल करना मतलब कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना अपने इनकम्स का कि ये मेरे को पूरे साल में इनकम हुए, ये आप देख लो, ये आपके जो भी फार्मूलाज हैं या फिर वेज हैं या फिर प्रोविजंस जो भी एक्ट में दिए हैं उसके हिसाब से मेरे इतने इनकम आते हैं, इस पे इतना टैक्स आता है, जो मैंने आपको इतना टैक्स दे दिया। तो ये मेरा फाइनल एंड होता है जब हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं गवर्नमेंट के पास तब। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जैसे अपने लेक्चर्स प्रोसीड होंगी तो उस पे बाद में हम पोर्टल से एक हम अपना रिटर्न फाइल करते हो, तो रिटर्न फाइल करने टाइम पे हमारे पास कुछ कुल मिलाकर के 7 फॉर्म्स हैं। तो वो सारे 7 जो फॉर्म्स हैं वो हर कैटेगरी के पर्सनस पे एप्लीकेबल होता है, तो उसको भी मैं बताते जाऊंगा। और ये सारे जो भी क्लॉज आप पढ़ोगे ना वो सारा आपका उस फॉर्म में इनबिल्टेड है, मतलब मीन्स लिया हुआ है कि ये यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस जैसे बताए वो दिया है, आपका पैन दिया है, मतलब सारा डिटेल्स जो भी आप एक्ट में पढ़ते हो वो सारा कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपके उस फॉर्म में ITR फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ITR फॉर्म हम लोग आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा वीडियोज़ में। Okay, so that much for this video. In the next video I would be with next chapter and hope you guys are enjoying. Okay, thank you for watching my video. Thank you so much.